નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું લોકમંચમાં. અને લોકમંચમાં આજે વાત કરીશું કર્ણાટકની, કારણ કે કર્ણાટકમાં કિંગ કોણ. જે પ્રમાણે કર્ણાટકની વાત કરીએ તો કર્ણાટકમાં ચૂંટણી પ્રચાર પડઘમ શાંત. મતદાન અને 13 તારીખે જ્યારે પરિણામ આવવાના છે ત્યારે તમામની નજર કર્ણાટક પર છે, કારણ કે એવું કહેવાય છે કે 2024 લોકસભાની જે ચૂંટણી આવી રહી છે આ પરિણામો સીધા એને અસર કરવાના છે. તમે જુઓ કે તમામ રાજકીય પાર્ટીઓને, ખાસ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીને કોંગ્રેસે એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું અને ગાળો, ગેરંટી અને અનામતના મુદ્દે કર્ણાટકમાં વાર પલટવાર જોવા ક્યાંક મળ્યા. ખાસ તો ભાજપ અને કોંગ્રેસના જે સ્ટાર પ્રચારકો છે, અહીં ગુજરાતમાંથી પણ કેટલાક જે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસના નેતાઓ ગયા હતા અને બીજા જે સ્ટાર પ્રચારકો છે એમણે સભાઓ ગજવી, રોડ શો કર્યા. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે કર્ણાટકમાં સ્થાનિક મુદ્દાઓની ચર્ચા થઈ રહી હતી અને ત્યારબાદ ક્યાંક સ્થાનિક મુદ્દાઓ વર્સિસ હિન્દુત્વનો એક જંગ અને આવો એક તખ્તો તૈયાર થયો છેલ્લા દિવસોમાં, એવું ક્યાંક જોવા મળે છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આક્ષેપ કરી રહી છે કે કોંગ્રેસ તુષ્ટિકરણનું રાજકારણ રમી રહી છે, જ્યારે કર્ણાટકના પછાત સમુદાયને જે અનામત આપવાની હતી, અનામત ન આપવાનો સરકાર પર કોંગ્રેસ આક્ષેપ કરી રહી છે. તો ખાસ પ્રધાનમંત્રી જે નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ત્યાં ઘણી બધી રોડ શો અને 19 રેલીઓ અને 6 રોડ શો કર્યા અને ક્યાંક આખું એક ચિત્ર પલટવાનો એક પ્રયાસ કર્યો. કારણ કે ભાજપ પાસે આખરે કોઈ જ નહીં તો પીએમ મોદી એક ચહેરો છે અને મોદી હતો મુમકિન હૈ આ માનીને જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્ટાર પ્રચારક વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 19 જાહેર સભાઓ કરી, 6 રોડ શો કર્યા છે અને એમણે કોંગ્રેસને જેડીએસ પર ભ્રષ્ટાચારના ભાગીદારી છે આ બંને જણની, એવો પણ આક્ષેપ કર્યો છે. ખાસ રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, ખડગેજી, આ સિવાય કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ પણ મેદાનમાં ઉતર્યા છે. અને ખાસ તો ભાજપ સરકાર સામે જે 40% કમિશનખોરી છે એ મુદ્દો કોંગ્રેસે ઉઠાવ્યો છે, કેટલો અસરકારક રહેશે. પરંતુ કોંગ્રેસે પોતાના મેનિફેસ્ટોમાં જ્યારે બજરંગ દળ પર બેન મૂકવાનો જ્યારે વાત કરી ત્યારે આખું એક રાજનીતિ કર્ણાટકની બદલાઈ અને બજરંગ બલી આવી ગયા આ પ્રચાર પ્રસારમાં. અને બજરંગ બલીને લઈને ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ ઘણો બધો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો છે. કોણ જીતશે અને કોણ સત્તા બનાવશે કર્ણાટકમાં, કોણ કિંગ, આ મુદ્દે ચર્ચા કરવી છે. ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે 2 રાજકીય વિશ્લેષકો જોડાયા છે અને બંને કર્ણાટકની જે રાજનીતિ છે એની પર નજર રાખી રહ્યા છે એવા બંને મહાનુભાવ આમ તો દિલ્હીથી મારી સાથે જોડાયા છે. રાજકીય विश्लेषक हर्षवर्धन पांडे मारी साथ जोड़ा है. हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में. जी धन्यवाद. साथ ही में चेतन त्रिपाठी, राजकीय विश्लेषक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट. चेतन जी, आपका भी स्वागत. नमस्कार सर, धन्यवाद बहुत बहुत. यस चेतन जी, शुरुआत करते हैं कि प्रचार जो प्रसार है अब थम गया है. 10 मई चुनाव हो रहा है और 13 मई को उसकी गिनती होने वाली है वोटों की. क्या लगता है कि भाजपा के लिए कितना अहम चुनाव है ये कर्नाटक का? एक तरफ भाजपा की ओर माहौल नहीं बन रहा है, ऐसी बातें थी, और एक सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में मजबूत दिखाई दे रही है और भाजपा दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं. अमित शाह ने जब रैली की लास्ट में तब बताया कि हम जो बहुमत है उससे 15 सीट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पा रही है और पूरे बहुमत से सत्ता में आ रही है. चेतन जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कर्नाटका का चुनाव इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक गैर हिंदी भाषी राज्य का चुनाव है और इस चुनाव से बहुत आगे की रणनीति तय होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसके अलावा एक बात देखनी होगी कि कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसकी सबसे ज्यादा समय तक राहुल गांधी ने कर्नाटका में रुके थे. तो कहीं ना कहीं अगर वहां पर कांग्रेस नहीं जीत पाती है चुनाव इस बार, तो उस भारत जोड़ो यात्रा का पूरा फ्लॉप हो जाएगी, वो उसका कोई प्रतिफल कांग्रेस पार्टी को मिलता नहीं दिखेगा. बीजेपी के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लगातार बीजेपी की सबसे ज्यादा, अगर कहीं इतनी जितनी भी सरकारें अभी प्रदेशों में चल रही है, सबसे कमजोर सरकार यहीं पे है गवर्नेंस के नाम पर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहां पे भ्रष्टाचार का मुद्दा था, फिर बोमई को बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखा जाता है. प्लस एक बात मैं और कहूंगा कि लगातार आप देखिए, अभी तक भाजपा जब बहुत उरूज पे थी, तब पीक पे भी थी, तो भी वह पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बना पाई. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 5 साल के बाद अब उनके उस रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव हो रहा है. प्लस कांग्रेस यहां बहुत मजबूत रही है. जब भी कांग्रेस बैकफुट पे आई है ना, तो कर्नाटका ने ही उसको रिवाइवल दिया है. आप याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई थी तो वो चिकमंगलुरु जाकर के लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और वहां से जीत के आई. जब सोनिया जी को पॉलिटिक्स में लॉन्च करना था तो भी वो बेल्लारी जाकर चुनाव लड़ी थी. पिछली बार भी आप देखिए कि लगातार जब कांग्रेस पार्टी बहुत जगह चुनाव हार रही थी
तो उसने वहां पे ऑल्दो जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और उसके बाद 3 हिंदी भाषी राज्यों में सरकार बनाई थी, वहां से उनका थोड़ा मोमेंटम बना था। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज, यहां लड़ाई टक्कर की है। लड़ाई टक्कर की इसलिए क्योंकि बाकी राज्यों में आप देखिए ना, तो कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप बहुत कमजोर होती है। आप किसी भी राज्य में जाइए तो बहुत स्टेट लीडरशिप, काफी मजबूत लीडरशिप नहीं है स्टेट्स में। लेकिन कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पे उनके पास बढ़िया स्टेट लीडरशिप है। सिद्धारमैया की स्वीकार्यता बहुत ज्यादा है। डीके शिवकुमार है, उनके पास बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्स है वहां पे। तो उस राज्य में दूसरी बात आप समझिए कि कांग्रेस का इस समय वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे जी, वो उसी राज्य से आते हैं। तो ये भी एक नैरेटिव सेट करने की कांग्रेस ने कोशिश की कि देखिए गुजरात जो है वो मोदी जी का गढ़ है, वहां पे उन्होंने उसको जितवाया, तो ये खड़गे जी का गृह राज्य है, यहाँ पे उनको उस चीज का, खड़गे जी जिस जाति से आते हैं, वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। फिर लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय, अब देखिए एक बात समझिए, मुस्लिम 18% है, तो ये सब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर के बीजेपी थोड़ी चिंतित जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने फिर से एक बार एक सेल्फ गोल कर दिया है यहाँ पर। अगर कांग्रेस बहुत अच्छी पिच पे वो खेल रहे थे, अच्छा मजबूत चुनाव था उनका, लेकिन अगर कांग्रेस ने बजरंग बली और बजरंग दल पे, जिस तरीके से उन्होंने बोला बजरंग दल पे बैन करेंगे, फिर बीजेपी ने उसको बजरंग बली से जोड़ दिया, और बजरंग बली से जोड़ के वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का कार्ड जो उनका फेवरेट कार्ड है वो उन्होंने खेल दिया, तो कहीं ना कहीं चुनाव वहां से बहुत रिवाइवल मिला है बीजेपी को। अब ये देखना होगा कि कितना ये सीटों में परिवर्तित होता है, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि जो मुद्दे मीडिया में छाए रहते हैं, जो वो जमीन पर उतने असर नहीं करते। तो अब ये देखना होगा कि बजरंग दल का के बैन का मुद्दा क्या वोटों में कन्वर्ट होगा क्या बीजेपी के लिए। अगर वोटों में कन्वर्ट होता है तो गृह मंत्री जी की बात सच में सही हो सकती है, लेकिन अगर वो वोटों में कन्वर्ट नहीं होता है और स्थानीय मुद्दों पर जिस पर लगातार कांग्रेस बैटिंग कर रही थी, चाहे वो आपका वो हो, जब लगातार उन्होंने 40% कमीशन की बात की, या बहुत सारी बातें की, तो अगर उन पर वो चुनाव हो जाता है तो बीजेपी के लिए दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव करा ले जाती है, मोदी जी की छवि पर, जो केंद्र सरकार के काम है उन पर चुनाव हो जाता है, और जो ये बजरंग दल का मुद्दा आ जाता है, इस पर कहीं अगर चुनाव हो जाता है तो बीजेपी के लिए अच्छी। चेतन, ये बजरंग दल का जो मुद्दा है कि बैन, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उसने जाहिर किया कि बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, बाद में बजरंग बली की एंट्री भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई। क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर, हालांकि ये मुद्दा ने, ऐसी एक बात हो रही है मीडिया में कि इस मुद्दे ने पूरा वातावरण, वहां का एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया है, तो क्या लगता है जमीनी स्तर पर जो लोग वहां पे है कर्नाटक में, जो मतलब चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, उन पर इसकी असर कितनी दिखाई देती है जमीनी स्तर पर? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले जातिगत समीकरण समझने होंगे। लिंगायत समुदाय 18% है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इस बजरंगबली वाले मुद्दे से अफेक्टेड नहीं है। 16 से 17% मुस्लिम है, उनसे इस मुद्दे से मतलब नहीं उनको, बल्कि इस मुद्दे का कांग्रेस को फायदा मिलेगा जो ओवैसी का वो मामला गड़बड़ होगा। फिर बोकालिंगा समुदाय 12% है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे का, लेकिन बाकी जो वोटिंग है वहां पर कहीं अगर कंसोलिडेट होता है तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है, वरना इस मुद्दे का मुझे लग रहा है कि उतना फायदा बीजेपी उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, ये चुनाव बताएगा। ये हम चुनाव विश्लेषकों के लिए भी एक एग्जांपल सेट होगा कि अगर इस मुद्दे का बीजेपी उस लेवल में फायदा उठा पाती, क्योंकि इस मुद्दे से पहले तक बीजेपी बैकफुट पे थी। प्रदेश सरकार के कामों को लेकर के लगातार ये बात थी कि प्रदेश सरकार के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। मेरे कुछ पत्रकार मित्र लगातार कर्नाटक से मुझे भी रिपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, बहुत खराब स्थिति है। मैंने तमाम सर्वे वालों से भी, जो मेरे सर्वे के दोस्त हैं जो लगातार इस तरीके के पॉलिटिकल सर्वेस करते हैं, उनसे भी मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्थिति सही नहीं है अगर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है। लेकिन जब ये मुद्दा आया बजरंगबली का, अब देखिए बजरंगबली का मुद्दा हिंदी भाषी बेल्ट में बड़ा इफेक्टिव रहता है। अगर बजरंग दल और जिस तरीके से रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे अगर कोई भी चुनाव हिंदी भाषी प्रदेशों में हो जाता है तो बहुत इफेक्टिव रहता है। हमको ये देखना है कि गैर हिंदी भाषी प्रदेश में भी क्या वो उतना ही इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जिस तरीके से बाद में डीके शिवकुमार ने उसको वो भी किया कि हम मंदिर बनाएंगे, हर जिले में एक मंदिर बनाएंगे, लेकिन देखिए कितना इफेक्टिव होता है, क्योंकि बजरंग दल का एक मुद्दा, नो डाउट मोदी जी ने उसको इस तरीके से फ्रेम तो कर दिया कि शायद वही सबसे बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस ने गोल किया है, ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है। अब ये इसका उनको नुकसान होगा, भले ही 1 सीट का हो या 10 सीट का हो, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर कोई कहे कि नुकसान नहीं होगा, तो मैं नहीं मानता, नुकसान तो होने ही जा रहा है। चलो बिल्कुल पांडे साहब, जिस तरह से बात हो रही है, गैर हिंदी स्टेट में चुनाव हो रहा है, बहुत अहम चुनाव है। और मतलब जो राहुल जी की बात की कि जब भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल जी ने, तब ज्यादा से ज्यादा राहुल जी यहाँ पे रुके थे। कितना फर्क पड़ सकता है भारत जोड़ो यात्रा की कि जो लोग उसमें जुड़े थे, कर्नाटक के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता, जनता भी जुड़ी थी, क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? दूसरी बात यह है कि 4% जो मतलब अनामत थी वो हटाने की बात, जो कि 4% आरक्षण को खत्म करने की बात की, मुस्लिम आरक्षण को, क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? कांग्रेस कितनी मजबूत आपको दिखाई देती है?
देखिए देखिए दिलीप भाई, शुरुआत वगैरह में तो ये लग रहा था कि बहुत अच्छा चुनाव खेल रही थी कांग्रेस। लेकिन वही है कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होगी जब से ये बजरंगबली का मुद्दा लेके आया। क्योंकि आप देखिए कि वहां पे जो बॉम्बई की सरकार है, उससे बहुत ज्यादा नाराजगी थी, इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी कि लोग परेशान हो चले थे। आप ये देखिए कि कर्नाटक का चुनाव जब शुरू हुआ था, तो उस दौरान आप देखें तमाम स्थानीय मुद्दे थे जिनमें 40% कमीशन, ये कोई नई बात नहीं थी। महंगाई का एक मुद्दा था, किसानों की समस्याएं का मसला था, नंदनी डेयरी का मसला था, बेरोजगारी का था, पानी सरीखे मुद्दे जो है ये प्राथमिकता में थे। और इन मुद्दों पर जो है जबरदस्त बढ़त बनाती हुई जो है कांग्रेस नजर आ रही थी। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 2 हफ्ते से कर्नाटक में चुनाव प्रचार में बीजेपी बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। और जब से मैनिफेस्टो वगैरह इस तरह की बातें आई, तो उसके बाद से परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और अभी देखते देखते चुनाव जो है अभी ऐसी स्थिति पे आ गया है कि बीजेपी थोड़ा बढ़त बनाती हुई यहाँ पर नजर आती है। जहां तक कांग्रेस की आपने बात की, कांग्रेस के पास स्थानीय लीडरशिप थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि जो उसके सबसे बड़े चेहरे थे लिंगायतों के, येदुरप्पा, वो इस चुनाव में किनारे हैं। ईश्वरप्पा को मना लिया था प्रधानमंत्री ने, उसके बाद से आप देखिए कि कई लोग छोड़ के चले गए। तो जो पुरानी लीडरशिप है उसका नई लीडरशिप के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो सही तरीके से पार्टी नहीं कर पा रही थी। और मैं आपको बता दूं, स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा एमएलए से उतनी नाराजगी नहीं है जितनी बॉम्बई से है। तो ये देखते हुए आप ये देखें कि एक बहुत बड़ा परेशानी जो है यहाँ पर पार्टी के सामने जो है खड़ी हो रही थी। जहां तक राहुल गांधी की यात्रा की बात है, तो आप ये देखिए कि भीड़ तो उनकी यात्राओं में हमेशा उठती है, लेकिन वो कितना वोट में कन्वर्ट हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता है, और मुझे यहाँ पर दिलीप भाई लगता है कांग्रेस के समय में एक किसी चेहरे को अगर वो आगे करते, जैसा कि हमारे साथी मित्र अभी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। बहुत बड़े सिद्धारमैया एक ऐसे चेहरे हैं कि वो बहुत बड़े चेहरे हैं कर्नाटक की राजनीति के अंदर। अगर कांग्रेस उनको एज ए सीएम कैंडिडेट यहाँ पर प्रोजेक्ट करती, तो शायद उसकी का वोट का परसेंट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता और अच्छी स्थिति में वहां पर हो सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं दुविधा है वोटर के मन में कि वो क्या करेगा, क्योंकि जिस तरह की सभाएं आ रही हैं उसमें डीके शिव कुमार भी साथ आ रहे हैं और वो भी साथ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति। पांडे साहब, माना कि पीएम मोदी जी ने जो 19 मतलब रैलियां की, रोड शो 6 किए, उसकी इफेक्ट आएगी, पर जिस तरह से कांग्रेस ने प्रचार प्रसार किया है कि खड़गे जी की बात करते हैं, अगर राहुल जी की बात करते हैं, प्रियंका जी, हालांकि सोनिया जी भी उस चुनाव प्रचार के दरमियान दिखाई दिए, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा कर्नाटक के लोगों पर? देखिए दिलीप भाई, कर्नाटक की जो पूरी राजनीति है, मुझे जहां तक लगता है, आप ये देखिए कि वो पूरी जाति राजनीति के दलदल से कर्नाटक की राजनीति जो है आज भी उबर नहीं पाई है। और आप ये देखिए कि एक ही बार का ट्रेंड ऐसा है कि जब किसी भी दल को जो है बहुत बड़ा बहुमत मिला, शायद 2013 के आसपास का वाकया है जब मेजोरिटी मिली थी। बाकी आप ये देखिए कि आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स जो है वहां चलती रहती है। कभी जेडीएस जो है आ जाती है आगे, कभी जो है कांग्रेस उसके समर्थन से सरकार बनाती है, कभी बीजेपी उसके समर्थन से बनाती है। आप 2018 का ट्रेंड देखिए, कई बार क्या होता है कि वोट का परसेंट ज्यादा हो जाता है और सीटें कम हो जाती हैं। आप ये देखिए कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में। 2018 में आप देखिए 36% के आसपास बीजेपी का वोट शेयर था और कांग्रेस का 38% था। तो कई बार स्थितियां अलग हो जाती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो स्थिति थोड़ा सा मुझे जो लग रही है वो लग रही है कि अर्बन में बीजेपी स्ट्रांग है, अच्छा कर रही है। और अभी जैसे जैसे चुनाव प्रचार थमा है तो उसने अच्छा किया है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी दिलीप भाई जो है वो रूरल एरियाज में है, ग्रामीण इलाकों में आज भी कांग्रेस का कंसोलिडेट जो है वो वोट है, स्ट्रांग वोट है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, तो इन पे उनका अच्छा होल्ड है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो अन्य दल हैं वो कितना खेल खराब करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप पांडे साहब, सवाल यह है कि जो भाजपा दावा कर रही है, पूर्ण बहुमत का जो दावा कर रही है और 120 सीट पर जीतने का जो दावा कर रही है, तो क्या लगता है कि भाजपा ये कर पाएगी? पूर्ण रीत से बहुमत पाने का जो दावा है पूरा कर पाएगी? क्या लगता है अभी पिक्चर क्या लगता है कि 50-50 लगता है कि नहीं? भाजपा का जो दावा है वो भाजपा करके बताएगी, जो अमित जी ने बताया है, अमित शाह ने बताया जो रैलियों में? लेकिन 50-50 तो मुझे नहीं लगता दिलीप भाई। अभी जो है, अभी जिस तरह की स्थिति में बीजेपी है वहां पर बहुत आगे है। मैं अगर अपना दाव लगाऊंगा, आप कहिए तो अभी 60 और 40 के आसपास जो है मतलब चल रहा है। बीजेपी 60% इस समय यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि चाहे सेंट्रल कर्नाटक हो, चाहे मध्य कर्नाटक हो, तटीय कर्नाटक हो, यहाँ पर इसकी स्थिति अच्छी है। अर्बन में बेंगलुरु वगैरह के आसपास का जो इलाका है वहां पर बीजेपी अच्छा कर रही है। सबसे बड़ी परेशानी जो है ओल्ड मैसूर के इलाके की है, वहां पर जो है जेडीएस का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जेडीएस और कांग्रेस में कितना वोट
शिफ्ट करता है, दलित का, मुस्लिम का, माइनॉरिटी का, ये एक बड़ा फैक्टर जो है वो कर्नाटक की पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा। और दूसरी बात दिलीप भाई, मैं यहाँ पर आप कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है कर्नाटका के अंदर वो ये है कि मठों की राजनीति यहाँ पर होती है। तकरीबन दिलीप भाई 700 के आसपास मठ हैं 30 जिलों के अंतर्गत, जिसमें 400 के मठ अकेले जो है वो लिंगायतों के हैं, 150 के आसपास वो लिक्का के हैं और अदर जो है वो है। तो इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, इनकी तरफ से कोई संदेश प्रसारित नहीं किया गया है। और दूसरी बात यह है कि लिंगायत जो है लंबे समय से जो है इनके साथ रहे। उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया, पर उनका झुकाव किस तरफ है वो देखिए, गांव जब तक येदुरप्पा थे तो उनके साथ मतलब वो रहते थे। हालांकि बॉम्बे भी जो है लिंगायत है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में वो कितना वो करते हैं, क्योंकि कर्नाटका में जब भी मतलब सरकारों में परिवर्तन हुआ है या हुआ है तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है लिंगायतों की। आज भी कर्नाटका की राजनीति जो है इसी जाति दलदल में जो है वो उलझी है। ये देखने वाली बात होगी कि ये किसको समर्थन करते हैं, क्या है। ओके चेतन जी, सवाल यह है कि भाजपा के पास ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो भाजपा इसमें मैदान मार सकती है? कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मजबूत जो मतलब मुद्दे हैं जो उसने भाजपा के सामने उठाए, टर्निंग पॉइंट जिसको अपने बोलते हैं दोनों पार्टी की ओर से? और तीसरा, जेडीएस वो क्या मतलब भूमिका निभा सकता है, उसकी अहमियत कितनी दिखाई दे रही है इस चुनाव में? देखिए, मैं सबसे पहले तो शुरू करूंगा जेडीएस से ही, क्योंकि सबसे जेडीएस वहां की स्थानीय पार्टी है। जेडीएस का जो होल्ड वोट है वो है बोकालिंगा समुदाय जो है उनका, उसका वोट होल्ड वोट है। और ओल्ड मैसूर रीजन में उनके पास अच्छा खासा होल्ड होता था एक टाइम। इस बार वो होल्ड लगातार टूट रहा है। मैं ये मानता हूं कि उनका होल्ड कितना टूटेगा, उनका वोट शेयर कितना टूटेगा और वो किधर जाएगा, ये की फैक्टर है, पहली बात। दूसरी चीज तो ये आपको समझ में आ गया कि देवेगौड़ा की पार्टी अब वो करिश्मा खत्म हो गया है, देवेगौड़ा जी का खत्म हो गया है। परिवार के अंदर बहुत डिस्प्यूट्स हैं और वो डिस्प्यूट सामने दिखने लगे, तो वो वहां पे एक ओल्ड मैसूर रीजन में ही है। अच्छा, एक चीज और हुई है, ओल्ड मैसूर रीजन में लगातार जो चुनावी विश्लेषकों से मेरी बात हो रही है, जर्नलिस्टों से बात हो रही है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। अब अगर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है तो, क्योंकि अभी तक ओल्ड मैसूर में हो क्या रहा था कि लड़ाई जो होती थी वो कांग्रेस वर्सेस जेडीएस की होती थी, अब वहां पे ट्रायंगुलर हो गई लड़ाई। फिर आते हैं कि किन किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। कांग्रेस के लगातार सारे स्थानीय मुद्दे, स्थानीय लीडरशिप, स्थानीय मुद्दे क्या है? अब नंदनी डेयरी का मुद्दा है, ठीक है। इसके अलावा 40% कमीशन का मुद्दा है जो लगातार एंटी इनकम्बेंसी उसका मुद्दा है। इन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही है। बीजेपी सारे नेशनल मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी बहुत बैकफुट पे है बोमई को लेकर के। अच्छा, नेशनल के साथ ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस स्थानीय मुद्दा पर है और स्थानीय मुद्दा वर्सेस हिंदुत्व के बीच ये जंग है? हाँ, मुझे अब लगने लगा है कि स्थानीय मुद्दा प्लस हिंदुत्व और मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है। देखिए, मामला बदला ही तब है, पिक्चर चेंज ही तब हुई है जब मोदी जी खुल के मार के मैदान में आकर के उन्होंने चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। जब तक मोदी जी चुनाव प्रचार में नहीं थे तब तक स्थिति बहुत पक्ष में थी बीजेपी के, कांग्रेस के। अभी मोदी जी क्योंकि चुनाव प्रचार में आए, उसके बाद से ही स्थितियों में ये परिवर्तन होना शुरू हुआ कि अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लड़ाई 50-50 है। हालांकि अभी भी मैं यही देख रहा हूं कि लड़ाई, क्योंकि देखिए आप ये समझिए, जब बीजेपी बहुत उरूज में होती थी, 2018 को देख लीजिए, ये जब येदुरप्पा बहुत बड़े नेता होते थे उस समय देख लीजिए, बीजेपी कभी वहां पूर्ण बहुमत में रही नहीं है। तो अगर बीजेपी वहां, मुझे तो दिख रहा है कि बीजेपी अगर अपनी सीटों को कंसोलिडेट करके वहां तक भी पहुंच जाए जहां पिछली बार थी तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो भी उनकी स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, जो मुझे दिख रहा है अभी तक। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी का जो कुछ भी है, जितना भी उनका स्टेक है, वो मोदी जी के फेस पे और जो केंद्र सरकार के काम है उन पर है। और ये जो इन्होंने लास्ट में हिंदुत्व का कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया, बजरंग दल के मुद्दे को लेकर, बैंक को लेकर के, इन तीन चीजों पर तो बीजेपी सिर्फ नेशनल मुद्दे, मोदी जी का फिगर, मोदी जी की इमेज और बजरंग दल। कांग्रेस के पास स्थानीय मुद्दे हैं, सिद्धारमैया जैसा क्रेडिबल फेस है, डीके शिवकुमार जैसा मेहनती आदमी है, और जो भारत जोड़ो यात्रा को उनको जो लेवरेज मिल जाए वो है। तो इन्हीं पर ये चुनाव हो रहा है सर। और मुझे लग रहा है जेडीएस का इस बार बहुत नुकसान होने वाला है। जो उनके पास 38 सीटें होती थी, वो मुझे नहीं लग रहा कि इस बार वो 38 तक जा रहे हैं, वो 20 से 30 के बीच में रहेंगे। हाँ, मैं ये देख रहा हूं कि 25 से 30 के बीच में वो कंफर्टेबल यहां तक रहेगा। बिल्कुल पांडे साहब, जो बात चल रही है कि अगर मान लो कि एक बात है कि हालांकि पीएम ने कई रैलियां की, लेकिन बेंगलुरु और मैसूर का जो रोड शो है उससे कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि लाखों लोग उसमें जुड़े थे। क्या ये लोग जो जुड़े थे वो सिर्फ मोदी जी को देखने आए थे? क्या रोड शो को देखने आए थे? क्या यही लोग का जो मतलब मत है वो कन्वर्ट हो सकता है, लोगों की भीड़ जो कन्वर्ट हो सकती है मत में, कि कम दिखाई देता है ये सब? देखिए दिलीप भाई, मैं कहूंगा कि इस बार के जो कर्नाटका का चुनाव है उसमें जो है हिजाब है, टीपू सुल्तान है, सावरकर है, इस तरह के मुद्दे जो है वो किनारे हो गए, इनके दिन लद गए हैं। हाँ, बजरंग बली ने जो है पूरा खेल जो है बदल दिया है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा मान्यता है, हनुमान जी का जन्म स्थान, आंजनेय
नाम से पुकारा जाता है और वहीं उनकी जन्मस्थली भी रही है। आज आप ये देखिए कि पीएम ने एक वीडियो संदेश भी जो है जारी किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंडस्ट्री में नंबर 1 बनाने के लिए जो है आप भाजपा को बराबर। वोट। और आज आखिरी दिन था, 8 किलोमीटर का लंबा एक रोड शो प्रधानमंत्री मोदी जो है बेंगलुरु के अंदर निकालते हैं। और वो शिवमोगा में भी शायद आज उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान का आशीर्वाद जो है उन्हें चाहिए, भगवान आशीर्वाद दें। और पीएम ने आज फिर से मतलब वो जहरीले जो बयान दिए थे खड़गे ने, उसका जिक्र किया। उन्होंने ये तक कहा कि विरोधियों ने उनको सांप तक कह डाला, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि मुझे वेंकटेश्वर स्वामी का विष से मतलब विष पीने की जो है वो ताकत मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये तो आपको मानना पड़ेगा कि वो गेम बदलने का पूरा मादा रखते हैं। और जब तक पिच अभी ऐसी नहीं थी, बहुत आसान थी कांग्रेस के लिए, लेकिन जब से वो आए हैं उसके बाद से जो है ये चुनाव बदला है। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ग्रोथ की बात कर रहे थे, विकास पर बात कर रहे थे, इस पे फोकस करते, डबल इंजन पे कर रहे थे। और आज आखिरी आते आते सभा जो हुई उनकी, वहां का जो स्थानीय सर्वे है हर्षवर्धन जी, वो स्थानीय सर्वे क्या कह रहा है, किसको जिता रहा है, किसको बहुमत दे रहा है वहां के स्थानीय सर्वे? देखिए अब स्थानीय सर्वे का तो अभी कुछ कह नहीं सकते दिलीप भाई। देखिए कल जब मतदान वगैरह हो जाएगा उसके बाद जिस तरह के एग्जिट पोल आएंगे तो क्या ट्रेंड होता है। लेकिन अभी जिस ट्रेंड को मैं पकड़ पा रहा हूं उसमें यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को माइलेज है और कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा फंसती नजर आ रही है अभी इस बार जो है। और एक बात मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा दिलीप भाई, जेडीएस तो 123 प्लस की बात कर रही है सीटों की, उसका वोट बैंक जो है बड़ा है। लेकिन आप ये देखिए कि हर चुनाव के अंदर वो खेल जो है वो बिगाड़ती है। आप ये मानिए ना मानिए, उसका जो वोट का शेयर था वो 15-20% के आसपास जो है वो झूलता है। लेकिन इस बार जो है बेल्लारी की रेड्डी बंधुओं की भी पार्टी यहाँ पर अहम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कल्याण राज्य प्रगति के पक्ष में कितना वोटर जाता है ये देखना होगा हमें। इसके अलावा मायावती ने भी पिछले बार बीएसपी ने 1 सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारा था। इस बार भी जो है 120 प्रत्याशी बीएसपी के अंदर वहां या कर्नाटक की राज्य के अंदर लड़ रहे हैं। और दूसरी बात जो है केजरीवाल भी मैदान में आ गए हैं, भले उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, 168 सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है उन्होंने उतारे हैं। अब बेंगलुरु शहर के आसपास थोड़ा बहुत उनका प्रभाव हो सकता है, कितनी सीटें करेंगी तो ये देखिए कि कितना वोट शेयर काटते हैं, बिल्कुल निर्भर करेगा। अब चेतन जी, सवाल है कि इस चुनाव का असर लोकसभा के चुनाव पर कितना देखने को मिलेगा, क्योंकि 28 सीटें हैं जो सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है, 28 सीटें लोकसभा की। और मान लो कि कांग्रेस अगर जीतती है तो विपक्षी एकता कितनी मजबूत हो सकती है, और अगर सभी दल जो कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो भाजपा के लिए एक चुनौती खड़ी हो सकती है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर ये चुनाव कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस यहाँ क्लियर मेजोरिटी की सरकार बनाती है, तो कांग्रेस तमाम जो क्षेत्रीय दल है जो अपना नेता या तीसरे मोर्चे की जो बात करते हैं लगातार, चाहे वो ममता बनर्जी जी है वो तीसरे मोर्चे की बात करती हैं, केसीआर तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। फिर कांग्रेस ये मान लिया जाएगा कि कांग्रेस की स्वीकार्यता अभी है और कांग्रेस के ही नेतृत्व में बाकी क्षेत्रीय दल आ जाएंगे। ठीक है, एक संभावना ये है। दूसरी चीज, अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है, जिसकी भी बहुत बहुत ज्यादा संभावना है, तो आप ये मान के चलिए कि ये क्लियर संदेश है कि 2024 में मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व को नहीं हरा पाती, ठीक है, उस जो मोदी जी का जो नेतृत्व है, जो उनके चेहरे का जो जादू है वो कमजोर नहीं पड़ता है अगर कर्नाटक में, तो ये मान के चलिए कि 2024 के चुनाव में तो कहीं नहीं कमजोर होगा। दूसरी चीज एक बात और देखनी होगी, देखिए आप 2018 में देखिए, 18 में जब चुनाव हुआ उसके बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई, हालांकि जेडीएस के साथ मिलकर बनाई, उसके तुरंत बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव होता है तो 28 सीटों में करीब 25 सीटें जो है बीजेपी जीतती है। तो अब जनता बहुत सजग हो गई है। जनता हो सकता है कि अगर आजकल का जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में हो सकता है कि वो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो जाए, ठीक है, जिसका और होना भी चाहिए। अगर मैं वोटर होता बिल्कुल होना चाहिए, तो राज्य का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब केंद्र का चुनाव होता है तो जनता के मुद्दे बदल जाते हैं। जनता ये देखना चाहती है कि किन मुद्दों पे चुनाव हो, कौन सा व्यक्ति है जो मुझे रिप्रेजेंट कर पाएगा। बिल्कुल। तो वहां पे जब मैं इस चुनाव को कतई एक स्टार्टिंग हो सकता है, एक अच्छा पेस दे सकती है ये यहाँ की जीत। अगर कांग्रेस यहाँ जीतती है तो इसके बाद जिन भी राज्यों में चुनाव होगा उसका मनोबल बढ़ा रहेगा, क्योंकि अभी हिमाचल जीते हैं, अगर उसके बाद कर्नाटक जीत जाते हैं तो एक रिदम बन जाएगी उनकी। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन 2024 का चुनाव इससे कितना प्रभावित होगा ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि देखिए अब जनता बहुत सजग है। वो केंद्र का चुनाव केंद्र के मुद्दों पर लड़ती है, प्रदेश का चुनाव प्रदेश के मुद्दों पर लड़ती है। तो अगर ऐसी भी स्थिति होती है तो मुझे ये दिख नहीं रहा है कि मोदी जी। और दूसरी चीज एक बात आप देखिए, तमाम चुनावी सर्वे होते हैं
हम लोग लगातार रोज कोई ना कोई चुनावी सर्वे देखते हैं। आप अभी देखिए मोदी जी के फेस की क्रेडिबिलिटी कि जब भी कोई सर्वे हुआ तो उसमें वो उनके सामने कोई दूसरा नेता टिकता ही नहीं। बिल्कुल, कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी कार्ड उतारा है, मोदी के चेहरे को उतारा है और मोदी जी ने जो सभा रैलियां की उससे पूरा पिक्चर जो आप दोनों ने बताया पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने कि पूरा पिक्चर बदल ગયા તો જે પ્રમાણે કર્ણાટકની વાત છે નો ડાઉટ પહેલા સ્થાનીય મુદ્દાઓથી આ ચૂંટણીની જંગની શરૂઆત થઈ હતી પરંતુ આખરે ક્યાંક હિન્દુત્વનો મુદ્દો આવી ગયો, ક્યાંક બજરંગબલી આવી ગયા, એટલે ભ્રષ્ટાચારનો મુદ્દો હતો, બેરોજગારી હતી કે પછી મોંઘવારી હતી, આ બધા જ મુદ્દા કદાચ સાઈડમાં થઈ ગયા અને અત્યારે જે મુદ્દાઓ છે લગભગ સ્થાનિક મુદ્દાઓની જગ્યાએ હિન્દુત્વનો મુદ્દો આવી ગયો છે, જાતિ આધારિત છે। એટલે જો કર્ણાટકમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતે છે તો 2024માં વડાપ્રધાન મોદીને કોઈ માત આપી શકે તેવું કંઈ લાગતું નથી ને જો કોંગ્રેસ જીતે છે તો ફરક એટલો પડે છે કે આ તો સ્થાનિક ચૂંટણી છે, સ્થાનિક મુદ્દાઓ હોવા જોઈએ। કેન્દ્રની જ્યારે ચૂંટણી હોય છે, પાર્લામેન્ટની ચૂંટણી હોય છે ત્યારે આખા મુદ્દા બદલાઈ જતા હોય છે, એટલે એ કળવું મુશ્કેલ છે કે આની 2024ની લોકસભા પર કેટલી અસર પડે છે। પણ એક વસ્તુ ફાઇનલ છે કે જો કોંગ્રેસ જીતે છે તો એના હોંસલામાં વધારો થાય છે અને બીજું કે જે ક્ષેત્રીય પક્ષો છે, જે નાના નાના રાજકીય પક્ષો છે એ કોંગ્રેસ સાથે કદાચ જોડાય અને બીજા રાજ્યોમાં ચૂંટણી થાય તો એની અસર ચોક્કસ જોવા મળે। એટલે જોવાનું રહેશે કે કર્ણાટકમાં કોણ કિંગ, પણ એક રસપ્રદ ચૂંટણી કર્ણાટકની કહી શકાય અને જે પોલિટિકલ એક્સપર્ટ છે એમના માટે એક અભ્યાસ પણ બની રહેશે। चर्चा समापन करिए छे। चेतन त्रिपाठी, हर्षवर्धन पांडे, दोनों आप हमारे साथ लोकमंच में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, लोकमंच कार्यक्रम में आती आजनी बात के कर्नाटक में किंग कोण। फरी मळीशुं एक नवी चर्चा साथे। आप जोता रहो गुजरात न्यूज। नमस्कार।